Good morning to all of you. In the last video, we complete the proforma of journal entries in the books of selling company. Just make revision for a few minutes. Journal entries in the books of selling company divided into three parts. You know very well. First, to close the balance sheet close. Second, realizing cash, and third, mixed payment to your for your liabilities. You have to concentrate this journal entries very well because your whole chapter depends on this proforma. Now in the balance sheet, first of all, we close assets, whether taken over or not, transfer to realization account. Thereafter, third party liabilities, only taken over, transfer to realization account. Third, shareholders means share capital, close share capital account, transfer to shareholder account. Fourth, if the third party liabilities is not taken over, then third party liabilities is not taken over. Then in third party liabilities, if there are debentures, then transfer to debenture holder account. Fifth point, undistributed profit transfer to equity shareholder. And sixth point, undistributed loss also transfer to the equity shareholder. Undistributed loss is also includes fictitious assets. Details of this we already discussed. Now, thereafter, realizing cash. Realizing cash, the first entry, purchase consideration. Second entry, purchase consideration received. And third entry, assets which are not taken over, realized. This about the 3 points in realizing cash. Now the third point, mixed payment. So the first payment you have to make for liquidation, yeah, realization expensive. Second payment, those third party liabilities which are not taken over by the purchasing company, mixed payment. Third point, you have to make payment to the preference shareholder. After this, you have to pass entries for closing books of account. Now in this closing books of account, first of all you have to close realization account, and whatever the difference of the realization account, transfer to equity shareholder account. Then all other account difference transfer to equity shareholder account, and last equity shareholder must be tallied. This is just simple formation of the selling company's journal entry. Now, we already discussed this through the summary system, but today I discuss it as per the information given in pamphlets. So be careful. I explain this journal entries for 3 to 4 times because this is very much important. See, the first point is about the
ट्रांसफर ऑफ एसेट टू द रियलाइजेशन अकाउंट, assets has debit balance, assets has debit balance. आपको मालूम है कि असेट्स का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। तो असेट्स कहाँ ट्रांसफर करेंगे? डेबिट बैलेंस है तो ट्रांसफर करना है तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। तो देखो यहाँ एसेट क्रेडिट तो रियलाइजेशन डेबिट। लेकिन आपको यहाँ समझना है ये एसेट कौन सी वैल्यू में ट्रांसफर करेंगे? बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू दो होती है, ग्रॉस और नेट। अगर नेट है तो वो कंसीडर नहीं करनी है, कौन सी कंसीडर करनी है? ग्रॉस। दूसरा पॉइंट, वेदर टेकन ओवर और नॉट। ओके, अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है तो ये आपका क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, तो ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर करना है। हाँ, फिक्टिशियस एसेट है तो होगा तो बैलेंस शीट के एसेट साइड, लेकिन यहाँ ये जो है कौन सा फिक्टिशियस एसेट? पी एंड एल अकाउंट, डेबिट बैलेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर और डिबेंचर इश्यू एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशंस एटसेट्रा ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। गुडविल और इंटेंजिबल एसेट्स should be transferred, all the assets whether taken or not, whether taken or not। कौन सी वैल्यू में? ग्रॉस फिगर्स, नॉट एज नेट फिगर। तो जो नेट फिगर्स में क्या होता है कि कोई भी एसेट्स होती है उसके सामने प्रोविजन क्रिएट किया होता है, डेटर्स के सामने बैड डेट रिजर्व, फिक्स एसेट के सामने उसका डेप्रिसिएशन प्रोविजन। तो ये जो ग्रॉस वैल्यू में हम ट्रांसफर करेंगे तो उसका जो रिजर्व और फंड है या प्रोविजन है वो भी हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन में। लेकिन उसका रिजर्व और प्रोविजन की कौन सी बैलेंस होगी? एसेट्स की डेबिट बैलेंस। लेकिन रिजर्व और प्रोविजन क्रिएटेड अगेंस्ट असेट हैज अ क्रेडिट बैलेंस, so it will be transferred to the realization account the same way as assets। So asset has a debit balance, so asset credit, realization debit, but the reserve and provision on the asset have a credit balance, so reserve provision debit, see depreciation fund debit, bad debt reserve debit to realization credit। तो यहाँ हमने आपको बताया कि पहले एसेट क्लोज करो, फिर अब थर्ड पार्टी लायबिलिटीज क्लोज करो। थर्ड पार्टी लायबिलिटीज में देखो कौन सी बुक वैल्यू में ट्रांसफर करेंगे? ओनली विच हैव बीन टेकन ओवर बाय द परचेजिंग कंपनी, जो टेकन ओवर होगी वो ही ट्रांसफर करेंगे। ये भी मैंने आपको समझाया है। तो उसकी एंट्री कौन सी आएगी? लायबिलिटीज की जमा बाकी होती है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो लायबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन क्रेडिट। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट द सेम वे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्रेडिट द सेम वे। डिबेंचर यहाँ समझना है इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, क्योंकि अगर आपका डिबेंचर सिक्योर्ड है तो उसका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग भी सिक्योर्ड है। अगर आपका डिबेंचर अनसिक्योर्ड है तो उसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी अनसिक्योर्ड है। तो जहाँ डिबेंचर जाएगा वो वहाँ ही आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जाएगा। तो अगर आपके बैलेंस शीट में डिबेंचर एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है और वो परचेजिंग कंपनी नहीं ले जा रही है तो वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे? डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लायबिलिटीज है तो उसकी जमा बाकी होगी तो उसको डेबिट करेंगे, तो डिबेंचर होल्डर क्रेडिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की कौन सी बैलेंस होगी? क्रेडिट बैलेंस। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट डेबिट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड एटसेट्रा ये सब डेबिट आएगा। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी और शेयर प्रीमियम, आप सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करते हैं। कंटीजेंसी रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड बहुत इंपॉर्टेंस है। P&L का क्रेडिट बैलेंस, इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस होगा जिसको आप फिक्टिशियस एसेट्स भी बोलते हो, उसका डेबिट बैलेंस होता है तो वो क्रेडिट करेंगे और इक्विटी शेयर होल्डर को डेबिट करेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर, शेयर इश्यू एक्सपेंस, शेयर और डिबेंचर इश्यू एक्सपेंस, ये सब क्या है?
अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस है। ओपन नेसेसरी अकाउंट फॉर दो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जो परचेजिंग कंपनी ले नहीं जाती है जनरली, एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज जो नहीं ले जाती है, उसका अकाउंट ओपन करो। तो यहाँ आपका जो है वो फर्स्ट पॉइंट पूरा हुआ, बराबर है। मीन्स आपका ये फर्स्ट पॉइंट कौन सा था? बैलेंस शीट क्लोज वाला था। कौन सा था? बैलेंस शीट क्लोज वाला था। ये क्लोज हुआ। अब रियलाइजिंग कैश, तो रियलाइजिंग कैश में क्या आएगा देखो, पहले परचेज कंसिडरेशन ड्यू की एंट्री, फिर अमाउंट रिसीव्ड की एंट्री। परचेजिंग कंपनी के पास से हमको अमाउंट लेना है, तो परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन क्रेडिट विद द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ये परचेज कंसिडरेशन कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसकी 3 मेथड है परचेज कंसिडरेशन जनरली, वैसे तो 4 मेथड है। तो परचेज कंसिडरेशन की कितनी मेथड है? जनरली 3 है, लेकिन यहाँ हम सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू 4 है। कौन सी? एक लमसम मेथड, दूसरा नेट एसेट, तीसरा नेट पेमेंट, और इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। तो किसी भी मेथड से आपने जो परचेज कंसिडरेशन डिसाइड किया है वो आपको परचेजिंग कंपनी के पास से लेना है, बिकॉज आपने आपका बिजनेस सोल्ड आउट किया है। तो परचेजिंग कंपनी डेबिट टू रियलाइजेशन क्रेडिट। क्यों रियलाइजेशन क्रेडिट? तो आपने क्या उसको दिया है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज आपने उसका लिया है वो कहाँ ट्रांसफर किया है? आपको दिया है, कहाँ ट्रांसफर किया है? रियलाइजेशन। तो उसका अमाउंट भी कहाँ ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन में। अब परचेजिंग कंपनी, ये टेम्पररी अकाउंट है तो इसको क्लोज कर दो। परचेजिंग कंपनी क्रेडिट, तो वो पेमेंट कैसे देगी? या तो कैश देगी, कैश तो आएगा नहीं, बैंक देगी, या तो इक्विटी शेयर के स्वरूप में देगी, या तो प्रेफरेंस शेयर के स्वरूप में देगी। तो इक्विटी शेयर ओनली नहीं लिखना है, कौन सी कंपनी का है वो लिखना पड़ेगा। इक्विटी शेयर ऑफ परचेजिंग कंपनी, प्रेफरेंस शेयर ऑफ परचेजिंग कंपनी। क्योंकि अगर आपके पास इक्विटी शेयर है तो वो कई कंपनी के हो सकते हैं, तो आपको कई कंपनी के शेयर मिले हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर जो एसेट नहीं ले गई है परचेजिंग कंपनी, उसको रियलाइजेशन करो। तो कैश एंड बैंक डेबिट टू रियलाइजिंग क्रेडिट। कौन सी वैल्यू? रियलाइजेशन वैल्यू। अगर दी होगी, नहीं दी है तो एज्यूम करना है। टेंजिबल एसेट होगी तो बुक वैल्यू, और इनटेंजिबल एसेट होगी तो नील वैल्यू आएगी। यहाँ करेक्शन करना है। नॉट गिवन देन इनटेंजिबल एसेट्स होगी तो नील वैल्यू आएगी। कौन सी आएगी? एट जीरो वैल्यू, ऐसा भी लिख सकते हैं, बुक के बदले में जीरो वैल्यू। Assets that are not taken over by the purchasing company should be realized in cash। और जब रियलाइज करेंगे तो डायरेक्टली उसका डिफरेंस जो भी आएगा वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन में। तो उसका जो नेट प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसको अलग से इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड वाला पॉइंट खत्म हो गया। पहले हमने बैलेंस शीट क्लोज की, फिर रियलाइजेशन ऑफ कैश। अब पेमेंट करेंगे, पहले पेमेंट लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, फिर पेमेंट थर्ड पार्टी लायबिलिटीज, और तीसरा पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो अब हम वो देखेंगे। ये मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ कि मैंने आपको एक बार समरी के फॉर्म में चलाया, दूसरी बार ये जो पैम्पलेट्स में दिया है उसके फॉर्म में चलाया, तो आपको समझ में आए कि ये 2, 3 बार, 4 बार मैं चला रहा हूँ तो उसकी अहमियत कितनी होगी। नाउ स्टेप थर्ड, यहाँ करेक्शन है। स्टेप थर्ड, पेमेंट मेड, ऐसा। तो पेमेंट करो। तो पहले पेमेंट ऑफ थर्ड पार्टी लायबिलिटी, एक्चुअली पहले तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करेंगे, फिर थर्ड पार्टी लायबिलिटीज। ओके, तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो सिचुएशन वेंडर कंपनी पेड, मीन सेलिंग कंपनी पेड करेगी तो रियलाइजेशन डेबिट टू कैश एंड बैंक क्रेडिट। दूसरी सिचुएशन, परचेजिंग कंपनी एग्री टू पे at a fixed amount by the way of liquidation expenses. In such a case, such amount will be included in the purchase consideration. This is the most important point.
on the payment of such expenses by vendor company as given in situation 1 will be passed. समझो, जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस होता है अगर वो सेलिंग कंपनी पे कर रही है, मीन्स हम कौन सी बुक्स में एंट्री पास ऑन कर रहे हैं, परचेजिंग कंपनी या सेलिंग कंपनी। तो अभी जो हम देख रहे हैं वो सेलिंग कंपनी के बुक्स में एंट्री देख रहे हैं, तो हम सेलिंग कंपनी है, अगर हम उसको पे कर रहे हैं तो एंट्री कौन सी आएगी, आप बताओ कौन सी एंट्री आएगी। तो रियलाइजेशन डेबिट टू कैश टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। लेकिन शायद हमको जितना एक्सपेंसिस होता है उसके बदले में परचेजिंग कंपनी उसके बदले में परचेजिंग कंपनी फिक्स अमाउंट देती है। तो जो उसने फिक्स अमाउंट दिया है, किसको दिया है, मालिक को दिया है। क्यों दिया है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने के लिए दिया है। तो वो जो फिक्स अमाउंट उसको उसने दिया है, तो उसका मतलब हमें रिवॉर्ड मिला हमारे बिजनेस के बदले में। तो जो फिक्स अमाउंट उसने दिया है वो हम परचेज कंसिडरेशन में ऐड कर देंगे। वो ऐसा बोलेगी कि मैं आपको 50,000 दूंगा या 55,000 दूंगा या 20,000 दूंगा। परचेजिंग कंपनी ऐसा बोलती है, वी आर पेइंग 20,000 ऑन बिहाफ ऑफ परचेज अगेंस्ट द पेमेंट अगेंस्ट द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। तो वो हमको मिला कि नहीं मिला, बरोबर है। तो वो आपको परचेज कंसेशन में ऐड करना है। अब आपका 15,000 उसने आपको दिया, अब उसके सामने आपका एक्सपेंसेस 20,000 होता है, 10,000 होता है या जो भी होता है। तो अब आप उसको पेमेंट करो। तो पेमेंट करोगे तो कौन सी एंट्री आएगी, पहली वाली एंट्री आएगी, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश एंड बैंक क्रेडिट। अब परचेजिंग कंपनी एग्री टू रीइंबर्स। रीइंबर्स का मतलब क्या है, पहले परचेजिंग कंपनी पे करेगी, पहले आप पे करो फिर परचेजिंग कंपनी पे करेगी। तो पहले आपने पे किया, समझो। तो कौन से बदले कौन रीइंबर्स का कौन आप कौन से बिहाफ मीन्स आपने क्यों पे किया, तो आपने परचेजिंग कंपनी के वती पे किया। परचेजिंग कंपनी ऐसा बोलती है कि आप पे कर दो और जो भी हो वो हमको बोलना, हम आपको दे देंगे। तो पहले आपने पे किया तो आपके पास से कैश जाती है तो बैंक क्रेडिट, लेकिन वो आपका एक्सपेंसिव नहीं है, आपको किसके पास से लेना है, परचेजिंग कंपनी के पास से। तो वो आपका ड्यू फ्रॉम हुआ, तो एसेट्स वो आपका क्यों क्या हुआ, ड्यू फ्रॉम परचेजिंग कंपनी, तो एसेट। तो परचेजिंग कंपनी डेबिट टू बैंक। अब जब परचेजिंग कंपनी आपको देगी तो आपका पैसा वापस आ जाएगा, तो बैंक डेबिट टू परचेजिंग कंपनी क्रेडिट। तो मोर ओवरली द सेम एंट्री शुड बी रिवर्स, तो नो इफेक्ट। तो ये नहीं पास करोगे तो भी चलेगा। ओके, तो ये लिक्विडेशन एक्सपेंसेस वाला पॉइंट था। अब थर्ड पार्टी लायबिलिटीज को पेमेंट करो, बुक वैल्यू पेड करोगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो लायबिलिटीज का सेपरेट अकाउंट ड्रॉ किया होगा आपने, तो लायबिलिटीज डेबिट टू कैश एंड बैंक क्रेडिट। अगर आपने ज़्यादा पे किया है तो लायबिलिटीज को एक बार पे कर दो और जो डिफरेंस आएगा वो रियलाइजेशन में पे ट्रांसफर करो। अगर आपने लायबिलिटीज को ज़्यादा पे किया है तो आपका लॉस है, तो लॉस हो तो रियलाइजेशन डेबिट, प्रॉफिट हो तो रियलाइजेशन क्रेडिट। वेरी सिंपल एंट्री है। लायबिलिटीज तो डेबिट ही आएगी हर एक एंट्री में, देख सकते हो आप। लायबिलिटीज तो डेबिट ही आएगी हर एक एंट्री में, लेकिन आपको कौन सी एंट्री का पास कंसीडर करना है, रियलाइजेशन। अगर लॉस है तो रियलाइजेशन डेबिट, अगर प्रॉफिट है तो रियलाइजेशन क्रेडिट और कैश एंड बैंक क्रेडिट। आपका मतलब ये हुआ कि लायबिलिटीज को पेमेंट कर दो, अगर डिफरेंस आता है तो वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो। अगर परचेजिंग कंपनी डिबेंचर्स नहीं ले जाती है तो वो डिबेंचर्स हमने कहाँ ट्रांसफ़र किया, तो पहले ही पॉइंट में आपको मालूम है, एक मिनट, चलो। तो
पहले बैलेंस शीट क्लोज वाले पॉइंट में आपको मालूम है कि अगर थर्ड पार्टी लायबिलिटीज उसमें डिबेंचर भी आ जाता है, तो अगर थर्ड पार्टी लायबिलिटीज परचेजिंग कंपनी नहीं ले जाती है तो डिबेंचर कहाँ ट्रांसफर करेंगे? डिबेंचर होल्डर में। तो अब डिबेंचर होल्डर वाला पॉइंट का पेमेंट करना है, तो डिबेंचर होल्डर डेबिट, उसमें परसेंटेज होगा, उसको या तो आपको आपका कैश दे रहे हो तो बैंक क्रेडिट, अपना इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर दे रहे हो तो इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर जब आया था तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर ऑफ परचेजिंग कंपनी डेबिट किया था। अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ तो सेकंड एंट्री में जब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर आया था तो आपने क्या किया था? देखो यहाँ परचेज कंसिडरेशन इश्यूड में क्या किया था आपने? परचेज कंसिडरेशन रिश्यू में क्या किया था आपने? देखो इक्विटी शेयर और परचेजिंग कंपनी आपको परचेजिंग कंपनी देती है तो कम्स इनटू बिजनेस, तो इक्विटी शेयर और परचेजिंग कंपनी डेबिट। तो अब वो आप पे कर रहे हो सपोज कि डिबेंचर होल्डर को, तो वो क्या आएगा? क्रेडिट। कैश और बैंक भी क्या आएगा? यहाँ आपको क्रॉस करना है क्रेडिट। और डिबेंचर होल्डर भी क्या आएगा? अगर आपको परचेजिंग कंपनी स्पेशली डिबेंचर को पेमेंट करने के लिए डिबेंचर दे रही है तो डिबेंचर ऑफ परचेजिंग कंपनी क्रेडिट। लेकिन ये अब नहीं आएगी क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 ये यहाँ आपको ये उसको कैंसिल कर देना है। अगर परचेजिंग कंपनी आपको डिबेंचर दे रही है तो उसका मतलब आपको ऐसा ही समझना है कि परचेजिंग कंपनी वो डिबेंचर ले जा रही है और अपने आप पेमेंट कर रही है। ये कैंसिल कर दो। अभी जब एग्जाम्पल में आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। अगर परचेजिंग कंपनी आपको ऐसा बोल रही है कि आपके डिबेंचर 20 लाख के हैं, हम आपको अपना डिबेंचर 20 लाख का दे रहे हैं उसको पेमेंट करने के लिए, इसका मतलब परचेजिंग कंपनी ने आपको, डेट मीन्स हमको सेलिंग कंपनी को डिबेंचर दिया, तो वो क्यों दिया? तो डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने के लिए बोला। तो डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने के लिए जो दिया है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 क्या कहता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 क्या कहता है? परचेज कंसिडरेशन includes all the payment made to इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को जो पेमेंट आएगा वही, तो उसने आपको नहीं दिया है, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने के लिए बोला है, तो वो परचेज कंसिडरेशन में आएगा ही नहीं, तो वो आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। उसका मतलब आपको ऐसा ही समझना है कि वो डिबेंचर परचेजिंग कंपनी टेक ओवर एंड पेड इटसेल्फ, और अपने आप वो पेमेंट कर रही है। ओके, अब पेमेंट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो सेम पॉइंट, या तो आप बुक वैल्यू पे करो, या तो आप मोर देन बुक वैल्यू तो लॉस, या लेस देन बुक वैल्यू तो प्रॉफिट। अगर लॉस होता तो रियलाइजेशन डेबिट देख सकते हो, प्रॉफिट होगा तो रियलाइजेशन क्रेडिट देख सकते हो। लास्ट में शायद आपको अगर जो शेयर आए हैं इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, अगर आपको ऐसा बोला है कि वो हम मार्केट में सोल्ड आउट कर रहे हैं तो मार्केट में सोल्ड आउट करो। आया था तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर और परचेजिंग कंपनी डेबिट, ट्रांसफर कंपनी नहीं तो परचेजिंग कंपनी लिखोगे तो भी चलेगा। तो आया था तो वो डेबिट, तो जाता है तो वो क्रेडिट, एंड कैश एंड बैंक डेबिट। और कोई भी गेन और लॉस होगा तो वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन में। तो यहाँ आपका जो एंट्री है वो ख़त्म हो गया। अब शुरू होती है क्लोजिंग एंट्री। तो क्लोजिंग एंट्री में क्या आएगा? तो रियलाइजेशन का डिफरेंस, प्रॉफिट होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट, और लॉस होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट। ओके, और लास्ट में पेमेंट टू द इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करो तो इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू कैश एंड बैंक या परचेजिंग कंपनी का शेयर या डिबेंचर। ओके, तो यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो ये हमने आपको बताया है, ये एग्जाम्पल गिनने की शुरुआत है। या ये
जो मैंने आपको जर्नल एंट्री समझाई है वो बार बार देखो, इसको आप दिमाग में रखो। इसी के साथ हम अपना एग्जाम्पल शुरू करेंगे। अब रिजर्व, प्रोविजन और फंड का ट्रीटमेंट कहाँ आएगा, तो कॉमन है, ये सब पढ़ने की ज़रूरत है, आपको मालूम ही है। अगर रिजर्व फंड अगेंस्ट एग्जिस्टिंग एसेट्स है, एसेट के सामने क्रिएट किया हुआ रिजर्व और फंड है, तो वो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, तो रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे। रिजर्व फंड अगेंस्ट रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटीज है, तो वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो बोले रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, अब कंपनी ही बंद कर रहे हैं तो ये फ्री नेचर का रिजर्व हो गया, और वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफर करेंगे। लेकिन रिजर्व फंड प्योर लायबिलिटीज है, सपोज कि स्टाफ प्रोविडेंट फंड है, ग्रेजुएटी फंड है, जो कंपलसरी पेमेंट करना है, ये लायबिलिटीज मीन्स मे बी पॉसिबल, लेकिन ये तो कंपलसरी है, तो वो एज अ क्लियर लायबिलिटीज एंड ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये 3 पॉइंट खास ध्यान में रखना है। ये अगेंस्ट एसेट्स है, ये अगेंस्ट अननोन लायबिलिटीज मीन्स नॉट क्लियर लायबिलिटीज, और ये प्योर लायबिलिटीज। प्योर लायबिलिटीज है तो प्योर लायबिलिटीज के सामने क्रिएट किया हुआ है, तो वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्योर लायबिलिटीज के सामने क्रिएट किया हुआ है तो वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। अगेंस्ट लायबिलिटीज है तो वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, जो क्लियर नहीं है वो इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफर करेंगे, और जो एसेट के सामने है वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफर करेंगे, बराबर है। लेकिन कोई रीजन ऐसा होता है कि सम पोर्शन इज प्योर लायबिलिटीज एंड सम पोर्शन इज फ्री नेचर, तो जो फ्री नेचर का है आगे के सामने, आगे जैसे देख लिया, जो फ्री नेचर का रिजर्व है वो इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफर करो, और जो लायबिलिटीज है वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो। तो यहाँ लिखा है प्रॉफिट पोर्शन है मीन्स फ्री नेचर का रिजर्व है, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफर करो, और जो लायबिलिटीज पोर्शन है वो क्लियर लायबिलिटीज, ट्रीटेड एज अ क्लियर लायबिलिटीज एंड ट्रांसफर करो रियलाइजेशन अकाउंट। से फॉर द एग्जाम्पल वर्कमैन कंपनसेशन फंड वाला पॉइंट आपको आता था कि पार्टनरशिप फर्म में वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्रिएट किया हुआ है 10,000, उसमें से 4,000 लायबिलिटी वर्कर्स का ड्यू है क्लेम के सामने, तो 4,000 लायबिलिटीज हुई, तो 6,000 फ्री नेचर का हुआ। तो वैसा ही पॉइंट यहाँ कंपनी में भी दिया हो तो 6,000 जो फ्री नेचर का है वो इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफर करो, और जो 4,000 क्लियर लायबिलिटीज है वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो। तो यहाँ आपकी एंट्री खत्म होती है। गुड डे।